Hello students. So today I am here with another topic of commerce or you can say business studies. So this is the second part. We have already discussed about principles of management given by Henry Fayol. So today I will be taking up the second part and the name of the topic is Principles of Scientific Management by F.W. Taylor. ठीक है, पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसने दिया है? F.W. टेलर. चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है और F.W. टेलर ने क्या बताया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हम समझेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड like to tell you or I would like to remind you all कि we have started our online tutoring sessions where you can study with us economics, accountancy, business, English. If you are from SSC, ISC, CBSC, UP board or you are pursuing BCom, you can mail us on needinfo.mail@gmail.com. We will be having one-on-one sessions on Zoom, Google Meet. आप मुझे मेल करिए एंड हमारे जो सेशंस होंगे वो one-on-one होंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हमें डिस्कस करने में आसानी होगी. और वी विल बी स्टडिंग वेरियस प्रैक्टिकल्स, वी विल डूइंग वेरियस प्रैक्टिकल्स ऑफ अकाउंटेंसी. और आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आप सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ. आप मेल करिए. हमारे टाइमिंग्स है 4 PM to 8:30 PM. ओके, चलिए आगे चलते हैं. समझते हैं पहले कि ये जो F.W. टेलर हैं उनके बारे में समझते हैं थोड़ा. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी फियोल जो थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड F.W. Taylor is known as father of scientific management. ठीक है, he developed the principles of scientific management and scientific technique. Here is a small introduction about F.W. Taylor. So F.W. Taylor was an American, laid the foundation of management as a science consisting of fundamental principles. Okay, he was an American and he laid the foundation of fundamental principles of management. He was the first expert to suggest the use of scientific methods of measurement and study for solving managerial problems. Third, Taylor is known as the father of scientific management. Okay, he's known as the father of scientific management. Next is F.W. Taylor was the first man in recorded history. He was the first man in recorded history who deemed work deserving of systematic observation and study. Scientific management is the art of knowing exactly what you want, you're meant to do. Basically इन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है. ठीक है, क्या? ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, you're meant to do. जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनसे आप क्या करवाना चाहते हो, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए. एंड देन seeing that they do it in the best and cheapest way. ये F.W. टेलर कहते हैं कि फिर आप देखिए, आपको समझ में आ गया कि आप अपने लोगों से क्या कराना चाहते हो, क्या काम करवाना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए. और फिर आप देखें एंड देन सीइंग, उसके बाद आप देखिए, गौर करिए, गाइड करिए, दैट दे डू इट, उसको काम को वो करें किस तरह से? बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में, सस्ते में. ठीक, कि आपका नुकसान भी ना हो. ये F.W. टेलर ने कहा है. नाउ हम लोग तब से देख रहे हैं कि F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी है. हम लोग ने मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ लिया था.
आप मेरे वीडियोस में जा करके, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके वीडियो सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप मैनेजमेंट क्या है हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. According to Taylor, scientific management is an art of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. अभी हमने बताया. In Taylor's view, if a work is analyzed scientifically, it will be possible to find one best way to do it. इनका कहना था अगर आप साइंटिफिकली कोई एक तरीका देखो वर्क करने का, एनालाइज करो, तो आपको पता होगा कि बेस्ट वे क्या है. Scientific management is a thoughtful, organized dual approach towards the job of management against hit or miss or rule of thumb. Scientific management implies working according to standardized techniques and tools and with the help of specialized personnel so as to improve the quantity as well as the quality of the product and the same time reducing the cost. Basically ये हमें पता होना चाहिए कि जो ये आप देख पा रहे हैं, ये पर्सोनल बेसिकली आपके एम्प्लॉय की बात हो रही है. ओके, एम्प्लॉयज की बात हो रही है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है. वो आप उनसे कैसे आप काम करवा रहे हैं, ये बात हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म. ये ध्यान रखने वाली बात है हमारी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म, क्योंकि ये FW टेलर ने दिया है, तो दिस इज टेलरिज्म. ओके, साइंटिफिक नेक्स्ट इज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. हर किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर बात करती है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन by increasing the productivity of the individual. Basically आप लेबर की, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो मेंटल वर्क कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाओगे तभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी. यही आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट सिखाता है. So Taylor has given 4 principles of scientific management. अगर आपको याद हो, हेनरी फ्योल ने we have already discussed, हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था, जो हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल जो थे, he gave 14 principles, right? He gave 14 principles of management and Taylor gave 4 principles of management. Okay, 4. कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं. Science not a rule of thumb, cooperation not individualism, development of workers, harmony not discord. ठीक, एक एक करके हम सब समझेंगे क्या वो कह रहे हैं, किस बारे में वो कह रहे हैं, सब समझेंगे. चलिए देखते हैं. Here also you can see 4 principles of FW Taylor. Science not the rule of thumb. This rule focuses on increasing the efficiency of an organization. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की. जब हम बात करेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो हम यहाँ बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस. ओके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. दिस रूल टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप. हार्मनी में रहना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. दिस रूल टेल्स अस about the mutual collaboration between workers and management. अभी भी हम एक एक करके और अच्छे से समझेंगे. Development of every person to his greater efficiency. This rule implies that the effectiveness of a company relies on the abilities and skills of the employees. कितना वो capable है employee, उस पर डिपेंड करता है कि वो organization कितना चलेगा. ओके, चलिए अब देखते हैं एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे, जो 4 प्रिंसिपल्स FW टेलर ने जो दिए हैं. सबसे पहला जो है वो क्या है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस है ये, कोई रूल नहीं है थंब का. क्या है, दिस रूल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन through scientific analysis of work and not with the rule of thumb method.
बेसिकली हमें यहाँ पर साइंटिफिक एनालिसिस करना है हर चीजों का, उसके बाद ही हम एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ा पाएंगे। ठीक, जैसे कि कोई रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप पहले रिसर्च करो, कॉस्ट पे रिसर्च करो, प्रॉफिट मार्केट पे रिसर्च करो, हर एक चीज को एक एक करके आप देखो, उसको एनालाइज करो, सिचुएशंस एनालाइज करो, फिर आप एक वर्क पर आओगे, तब आप एफिशिएंसी उस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ा पाओगे। सेकेंड इट, डिसीजन शुड बी मेड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस। जब आपने वो एनालिसिस कर लिया, वो रिसर्च कर ली, तब आप उसके बेसिस पर डिसीजन लोगे। एंड नो विद द रूल ऑफ थंब where the decision is taken according to the manager's personal judgment। रूल ऑफ थंब क्या कहता है भाई, ठीक है जो मैंने कह दिया वही होगा, मैनेजर ने जो पर्सनल लेवल पर सोच लिया वो करेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। साइंटिफिक एनालिसिस हर चीजों का करना है, उसके बाद हम उसी बेसिस पर डिसीजन लेंगे। द वर्क शुड बी डन बाय कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग। हर एक लेवल पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, न्यू टेक्निक्स इवॉल्व करेंगे। नॉट टू गेट स्टक इन अ सेट ऑफ रूटीन। एक सेट रूटीन में ना बंध जाए हम, बार बार वही करे जा रहे हैं। एक बार प्रॉफिट हो गया तो ऐसा ना हो कि हम वही सेट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ठीक, विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क। नए टेक्निक को भी हम लेकर के आएंगे ओल्ड टेक्निक के साथ। ठीक, जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखिएगा, अगर आज के टाइम में आप देखो तो एआई का रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें एआई को भी अपने काम में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि बस हम चलें आज भी बुक्स बना रहे हैं, कंप्यूटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुक्स मतलब बेसिकली हम एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं पुराने स्टाइल से और सब काम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जब हमारे पास एआई है, कंप्यूटर है, तो हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। ओके, लेकिन विद द ओल्ड मेथड ऑल्सो। ठीक है, पुराने को भी हम ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल वर्क लाइक लोडिंग ऑफ आयरन पिग्स इनटू बॉक्स कार शुड बी साइंटिफिकली डन। ठीक है, बेसिकली मतलब छोटे छोटे काम को भी आपको, मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई पिन रखना है, कोई बॉक्स में कोई सामान रखना है, तो उसका भी आप तरीका ढूंढिए। एक मतलब एक फॉलो अप होना चाहिए हर चीजों का, एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए हर चीजों का। ही ऑल्सो बिलीव दैट द वर्क डन साइंटिफिकली रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप हर चीज को एनालाइज करके करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा या रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अचीव द टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। टारगेट आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो ये था साइंस नॉट द थंब ऑफ रूल। एंड द सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। द वर्क प्लेस शुड बी इन सच अ वे दैट लेबर्स एंड मैनेजमेंट शुड कंसिडर ईच अदर इंडिस्पेंसिबल। मतलब जो लेबर है, जो हमने हायरार्की पढ़ी थी अगर आपको याद हो, एक ऊपर है, एक सीईओ है, फिर उसके नीचे मैनेजर है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर है, फिर उसके नीचे जूनियर सीनियर वर्कर्स हैं, उसके नीचे जूनियर वर्कर्स हैं। तो ऐसा ना हो कि ये अपने आप को कुछ और समझें, ये अपने आप को कुछ और अलग तरह से समझ रहे हैं, ईगो में वर्क करें, ऐसा नहीं है। हार्मनी सबके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, मतलब हर किसी को अपने आप को एक इंपॉर्टेंस जरूर देना चाहिए, लेकिन हार्मनी में। द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट विल हेल्प इन अचीविंग डिजायर्ड गोल एफिशिएंटली। ठीक, अगर एक अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी किसमें, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में, तो काम बहुत अच्छे से होगा और जो हमें गोल अपना अचीव करना वो आराम से हम कर पाएंगे। Third is, there can be a significant improvement and growth in the productivity if there exists a friendly relationship between the managers and the laborers where both value the efforts of each other। अब ऐसा ना हो कि पता चले लेबर काम पे काम किए जा रहा है, काम पे काम किए जा रहा है, बट मैनेजर क्या है, मैनेजर जो है वो समझ ही नहीं रहा है, उसके उसकी जो भी वो वर्क कर रहा है उसकी भावनाओं को ही नहीं समझ रहे, कोई ना बोनस दे रहे हैं बल्कि उसको और पनिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक हार्मनी में एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए हर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन। ओके,
According to Taylor, the harmonious relation can be achieved by mental revolution where workers and managers will transform their thinking. आप लोग आपस में मिलो, मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ एक टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे की बातों को समझे, मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर का क्या डिसीजन, वो मैनेजर क्या करवाना चाहता है, लेबर जो एम्प्लॉइज है वो किस तरह से वो काम को करना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए और सबको एक दूसरे की बातें समझनी चाहिए, तभी आप गोल को, वो बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। ओके, देयर शुड बी कंप्लीट ओपननेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हर एक ओपननेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, मतलब अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में तो आपको उसका हिस्सा वर्कर्स को भी देना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स की वजह से ही आप इस पोजीशन पे पहुंच पाए हो। ठीक, ओके। थर्ड इज cooperation, not individualism. It implies mutual collaboration between workers and management. Okay, management. एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। हर कोई अलग अलग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्रुप में काम करना होगा, हमें एक स्पिरिट बना के, टीम स्पिरिट बना के चलनी होगी। द मैनेजर एंड वर्कर्स शुड ज्वाइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको साथ मिलके काम करना होगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग काम करोगे तो क्या होगा, वो कंपनी बिखर जाएगी। ठीक है, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको सबको ज्वाइंट में काम करना है। ठीक है, ये इनके हिसाब से चले, ये इनके हिसाब से चले। ठीक, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट कैन टर्न इंटरनल कंपटीशन इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, आपस में आपको लड़ना नहीं है, ईगो पे काम नहीं करना है, क्या करना है, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना के चलना है। वर्कर्स ऑल्सो शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट। बेकार की, वर्कर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बेकार का कोई डिमांड ना करें। जितना जो हो रहा है एक्चुअली आपको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजर को हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर स्मूथली काम चल रहा है तो वर्कर्स को भी स्ट्राइक्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मैनेजमेंट शुड वेलकम द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ वर्कर्स। भाई डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखना होगा, वर्कर्स की भी सजेशंस पर मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। रिवॉर्ड्स फॉर गुड आइडियाज, अगर कोई अच्छा किसी ने सोल्यूशन दिया है, कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए रिवॉर्ड्स बनता है, विच विल गिव अ पाथ ऑफ कोऑपरेशन। आगे उसकी और मदद, मतलब उसको मदद करने का मन करेगा आगे। ठीक, लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगर हर कोई अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करेगा तभी तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल हो पाएगा। ठीक, चलिए, according to Taylor, every organization should follow scientific method of selection of workers and each worker should be scientifically selected. Basically क्या हो रहा है, हर एक इंसान जो वर्कर है वो एक अच्छे स्किल लेकर के आ रहा हो। ठीक है, उसके पास एक अच्छा स्किल हो, ऐसा ना हो कि कोई बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, पार्शियलिटी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ, कोई आपका जानने वाला है तो आपने उसको रख लिया काम पर, उसके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी किसकी, उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, the overall efficiency and productivity in an organization depend on how competent individual employees are. कितना वो skilled है employee, कितना उसे काम अच्छे से आता है, ये ही बता पाएगा कि आपकी efficiency कितनी ज्यादा है काम कर organization की। Providing training to the workers was considered essential. अगर आप ट्रेनिंग दीजिए वर्कर्स को, essential in order to learn the best method developed through the use of scientific approach. Efficiency can be attained by selecting employees scientifically. The scientifically का मतलब क्या होगा, एक इंटरव्यू लेकर के आप काम करें, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ रिक्रूट कर रहे हो, किसी को रिक्रूटमेंट हो रहा है तो इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे रिटन टेस्ट हो गए,
ठीक है, रिटन टेस्ट हो गए, इंटरव्यूज हो गए, और अगर कहीं 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 होता है स्किल टेस्ट हो गए। ठीक है, स्किल टेस्ट जैसे कि मान लीजिए टाइपिंग, मान लीजिए टाइपिंग कुछ स्किल्स हो गई जो आप देख सकते हो, या अकाउंटिंग स्किल्स हो गई जो आप देख सकते हो। ठीक है, the jobs assigned to the employees should be according to their educational qualification। ठीक है, अगर उसके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर वो उसने बीकॉम किया है फॉर एग्जांपल, तो उसे अकाउंट्स की जॉब्स दे सकते हो आप। अब ऐसा ना हो कि किसी ने आर्ट्स लिया हुआ है और आप उसको कह रहे हो कि नहीं आप अकाउंट संभालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, once the job is assigned the missing skills should be identified। अगर एक बार जॉब असाइंड हो गई है तो अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको ट्रेन करें कि वो उस मतलब स्किल्स उसके पास आ जाएं और फिर वो आगे काम कर सके। लास्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मिसिंग स्किल प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द स्किल्स। वही बात है कि अगर जब स्किल आपको पता चल जाए कि ये स्किल उसमें नहीं है उस पर्सन में और आपने रिक्रूटमेंट कर लिया है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। ठीक, दिस इज व्हाट all about F.W. Taylor scientific management. Okay, principles of scientific management. Now, features of scientific management. Last में हम देखते हैं क्या है scientific management के कुछ features. Scientific management is a systematic approach. Scientific management क्या है? एक systematic approach है, एक system है, ठीक है, to management, and its use ensures that all activities are completed in systematic and scientific manner. Brings complete mental change. Scientific management brings about a complete mental change both in owners as well as employees of the organization. एक scientific management क्या करता है? एक mental change लेकर के आता है owners में। owners में कैसे लेकर के आएगा? उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो experiment करके कर रहा है कोई चीज, ठीक है, एक scientific बेसिस पे कोई चीज कर रहा है, और एम्प्लॉयज के दिमाग में भी ये चीज आएगी, चेंजेस अपने आप खुद ब खुद, क्योंकि आपको उस बेसिकली आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको एक रिजल्ट पता होता है, आप कंफर्म्ड होते हो। ठीक है, उस राह पर आप चलने को एक तरह से मतलब आप पूरी तरह से कोशिश करोगे उस राह पे चलने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से उस एक्सपेरिमेंट को होते हुए पहले ही आपने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लिया है। Both the parties start aiming for more and better production targets rather than merely chasing higher profits। ठीक है, फिर एक better production targets की तरफ आप बढ़ोगे, सिर्फ आप profit motive पे काम नहीं करोगे। They are able to comprehend that increased and better production will automatically results in higher profit, which will benefit both the parties। बेसिकली आपको ये समझ में आ जाती है कि सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे भागना ही नहीं होता, अगर आप बेटर प्रोडक्शन करोगे तो आपके पास अपने आप हायर प्रॉफिट्स आएंगे। Discard traditional management. The approach of scientific management completely discards traditional management. Basically पुराने तौर तरीकों को ये हमें हटाने की कोशिश कर रहा है जो scientific management है। ठीक, it calls for discarding of old techniques and adopting of new and modern techniques। जैसे मैंने भी बताया AI की मदद ले सकते हैं अब हम, पुराने धर्रे पर हमें नहीं चलना है, with the aim of improving the efficiency of employees। किस मोटिव से? कि हम employees की efficiency को improve कर सकें। So thank you all. Hope you have understood this topic well. और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशन। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1-on-1 सेशन में आपको बस इस ईमेल आईडी पर needinfo.mail@gmail.com पर हमें मेल करना है, आपको सारी डिटेल्स इस पर मिल जाएंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कंटेंट या कोई टॉपिक आपको समझना है तो वो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।